First, boys and girls, today we are going to start with our topic. As we have already discussed number of topic. हम लोगों ने क्या क्या किया है उसको पहले रिव्यू कर लेते हैं. First, we have discussed number of topic, that is from unit first, that is fundamental of computing. ये हमारा टॉपिक completed है. That means we have discussed approx all the topic related to this particular unit. That is IPO, what is actually the IPO, working of computer, and parts of computer related things. Next one is that is called unit 2, that is basics of Python programming language. ठीक है. बेसिकली बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, टॉपिक से रिडक्ट कर दिए गए हैं ड्यू टू लॉकडाउन. और मैंने आपको श्योर भी किया है कि जो भी आपके टॉपिक हटाए गए हैं वो सारे टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज एंड, दैट इज नॉट फॉर योर सिलेबस. तो आप जो भी यहाँ पढ़ोगे वो अपने नॉलेज एंड के लिए पढ़ोगे ताकि आप उसका रियल टाइम में यूटिलाइज कर पाओ, क्योंकि वैसे भी टॉपिक यहाँ पे रिलीज रिमूव कर दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टपल, जैसे कि सेट. ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप आगे फर्दर का काम करोगे, जैसे नमपाई पे काम करोगे, जैसे कि आप काम करोगे. मिनट आगे कर लेता हूँ स्क्रीन. तो वन बाय वन पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली वी हैव डिस्कस. Actually, we are at the end of the syllabus for midterm examination or post midterm examination, and from here we are going to turn for the new topic that is not a part of Python programming, that is a part of database programming or database management system. So before getting started with another topic, we should discuss about what actually we have discussed. So first we have discussed about what actually computer programming language. हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन किया है आपके साथ कि व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एंड इससे भी पहले हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द मेजर software part which is required for performing a specific set of operation inside the computer that is designed by the user or programmer like us. And after that I have discussed about what actually the computer programming is and why it is necessary. That means without computer programming, what actually we cannot perform inside the computer. Very simple, we cannot create any kind of software. So if a user wanted to have a specific type of software that is for the user's end, that means user demand. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरा एक सॉफ्टवेयर बने तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोग्रामर तक शिफ्ट कर दें, कंप्यूटर हार्डवेयर तक शिफ्ट कर दें. तो नॉर्मली आपने पढ़ा है कि व्हाट एक्चुअली द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज. सॉफ्टवेयर दो तरह का पढ़ा है आपने, सिस्टम सॉफ्टवेयर and the another one that is called application software. So we have discussed about these two category of software in detail. Even मैंने इसको 2-3 क्लास में पढ़ाया था जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है. तो basically we have discussed these kind of softwares. System software is designed for the hardware acceleration and application softwares are designed for the user end, or we can say that user specific. That means this kind of software is handled by or used by users like us. Next, how actually the software is going to be created. Basically softwares are created with the help of the term that is called computer programming, or on the basis of implementation point of view, we have already discussed about number of category related to the programming world. That means we have 3 category of computer programming. First one, that is machine understable form. That means
type of the computer programming language that is hardware and hardware can understand directly. That is called machine language. मशीन लैंग्वेज को ही हम लोग यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं. LNG लिखता language. Next category, basically this kind of languages is not used widely today by programmers or developers because it is very complex to operate or design the code. And one of the demerit is that machine level language, or we can say that machine language are machine dependent. So we can't make same program, we can't execute the same program for multiple platform or multiple computers. So it is very difficult to handle. That's why we have created another kind of language that is called middle level language. Basically a type of language that is immediately understood by the hardware. ठीक है, that means कि आधा user जानते हैं और आधा hardware जानते हैं. So we use the term here that is called assembler. Basically we need assembler. Basically we need a kind of language processor, or we can say that language translator, which is going to be understood by the hardware as well as programmer as well as your programming language. So इन तीनों पॉइंट पे हमारा काम करे, इसके लिए हम लोग एक मीडिएटर बनाते हैं that actually called language translator. An assembler is one of the language translator which is designed for machine level language only. Okay, that means it is especially used by middle level languages, and we can say that kind of language that is immediately understood by the computer hardware. That means यहाँ पे जो भी चीजें लिखते हैं हम लोग that is in the form of mnemonics. ठीक है, जैसे कि as for example let a, exp, ern, disp. These are the mnemonics that is used inside the middle level language. And when we go through the machine level language, we only use this. We only use these kind of keywords or these kind of contents that is going to be executed inside the system. That is always in the form of 0 and 1. तो दिखने में ज्यादा complicated है तो जाहिर सी बात है इसका implementation भी complicated है. So we have the another kind of language in the computer that actually called high level language. मैं बस रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आप उसको रिव्यू कर सको जो आपने नोट्स बनाई है. ठीक है, basically high level language is a kind of language that is directly understood by the human. We can directly say that it is same as English language. जैसे हम लोग English language को अपने real life में use करते हैं, we are using the same for the high level language. And here is the list of programming languages that is most popular from 1960 to today. VB means होता है Visual Basic, Java, C#, ASP, ASP, इसके बाद आया ASP.NET 2005 या completely over इसको हम लोग बोलते हैं .NET टेक्नोलॉजी. मेरा स्पेशलाइजेशन इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, प्लेटफॉर्म पे है. नेक्स्ट पार्ट वी आर यूजिंग विथ द टर्म दैट इज कॉल्ड पाइथन. ये 2006 में आया. सो we are going through this particular topic right now. So it is just the basic of high level languages. That means these are the languages that is collectively called as high level languages. C was invented in mid of the 1960, where C++ was introduced in 1970s, and Java is introduced in 1990, and these are the rest one that is used after a decade. That means कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसका मोस्ट पॉपुलैरिटी जो हमारा था वो मिनिमम 6 to 10 ईयर का था.
तो जो भी आप गैप यहाँ से 60 से पॉइंट कर लो, ये आपको दिख जाएगा। आई रिसीव अ मैसेज फ्रॉम योर साइड, जस्ट चेक इट, व्हाट इज नेट मंकेत। चलो कोई नहीं मंकेत, मैं बता देता। फर्स्ट आई नीड टू सेव इट। चलो सेव कर दिया। तो यहाँ पे मिस्ड आपका टॉपिक था कि व्हाट एक्चुअली द डॉट नेट मीन्स। तो सिंपली इसको आप यूं समझ लो, डॉट नेट इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म like ID. It is a one of the, or we can say that it is a one first computer programming platform that identify with RAD, RAD, RAD. अब RAD का नाम जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? Basically, RAD is a technique by which we develop software rapidly. That means it stands for Rapid Application Development. Whenever we go through it, we find the term that is called IDE, Integrated Development Environment. बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब जैसे आज फॉर एग्जांपल मान लो अभी के समय में जो लॉकडाउन टाइम है हमारा, इसमें हमें दो तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत है। फर्स्ट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरे मोबाइल में भी काम कर जाए, वो हमारे लैपटॉप में भी काम कर जाए और मेरे टीवी पे भी काम कर जाए, वैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है जूम। आप इसको अपने टीवी पे भी चला सकते हो, लैपटॉप में भी चला सकते हो, मोबाइल में भी चला सकते हो। तो इसके जो डेवलपमेंट हुए होंगे, ये डेवलपमेंट किसी एक लैंग्वेज में नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स इट इज डेवलप्ड बाय नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स लाइक अ डॉट नेट इज एग्जाम्पल, पाइथन इज द एग्जाम्पल। आज के डे में पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पाइथन हमारा ओपन सोर्स फ्री है। दैट मीन्स यहाँ किसी तरह की पेमेंट नहीं करनी है किसी भी वेंडर को रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट वन है डॉट नेट। डॉट नेट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और पेड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे काफी मोटा पैसा आपको देना पड़ता है कंपनी को टू ऑपरेट विद दिस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और आज के डे में तो आज आपके पास सबसे बड़ी फैसिलिटी दे रही है डॉट नेट, दैट इज कॉल्ड एज्योर। एज्योर का मतलब यहाँ पे हो गया काइंड ऑफ द सर्विस विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। मतलब आपको कोई कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर किसी भी तरह का अगर लोअर स्टैंडर्ड कंप्यूटर भी है, जो काफी पुराना कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, टीवी है, आप उससे पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। एंड दैट इज एक्चुअली डन बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। एंड आफ्टर दैट वी हैव नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग नंबर ऑफ वेंडर्स लाइक ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड मेनी मोर। तो बहुत सारे आज के डे में ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप क्लाउड सर्विस का यूज करके सारे के सारे एप्लीकेशंस, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप डायरेक्टली रेंट पे ले सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी जो सामने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है मेरे कंप्यूटर में, ये विंडोज 8.1 32 प्रोफेशनल है। और इसको अबाउट मैंने 17,000 में खरीदा था, काफी महंगा था। 30,000 का कंप्यूटर, 17,000 का सॉफ्टवेयर। तो खुद सोच के देखो कि कितना महंगा है ये। तो वैसे सेंस में हमारे पास आज के समय में ऑप्शन है कि या तो आप ओपन सोर्स में चले जाओ, और दूसरा है आपके पास दैट इज कॉल्ड पेड। तो पेड में आपके पास दो वेराइटी है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। तो इस तरीके से अगर हम डॉट नेट पे डिस्कशन करेंगे तो पूरा दिन डिस्कशन करते रह जाएंगे। तो डॉट नेट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। इसकी खुद की आईडीई होती है, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है, जिसमें डॉट नेट में नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जिसको हम लोग बीबी सी प्लस प्लस बोलते हैं, सी शार्प बोलते हैं, या जो दिख रही है आपको दैट एक्चुअली कॉल्ड सी शार्प, ASP डॉट नेट, देन आफ्टर JSP। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारी प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, ये सारे चीजें आप डायरेक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो आज के डे में पाइथन भी प्रोवाइड करता है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टुडे। ठीक है, अब इतना डिटेल में नहीं जाना है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी हैव टू गो, व्हाट एक्चुअली वी हैव डन। नेक्स्ट, इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था बेसिक्स ऑफ पाइथन। पाइथन का बेसिक में आपको बताया था व्हाट एक्चुअली द पाइथन इज, हाउ टू डाउनलोड पाइथन ड्राइवर एंड हाउ टू इंस्टॉल इट इनटू योर कंप्यूटर। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ हाउ एक्चुअली यू कैन वर्क विथ पाइथन ऑन योर मोबाइल। मैंने प्रोग्रामीज ऐप के बारे में बताया था आपको,
PROGRAMIZ जेड ऐप। इस ऐप को यूज करने का आपको सजेशन दिया था कि आप इसका इस्तेमाल करो, ये फ्री है। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ट्यूटोरियल भी मिलता है और साथ में आपके पास प्लेटफॉर्म भी मिलता है कोडिंग के लिए। आई गॉट 4 रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड, जस्ट वेट। क्या क्या लिखा है इन्होंने? सर व्हाट हु मेड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी लोअर क्लास क्वेश्चन। गोडियो वन रोशन, ये हमारा नीदरलैंड के थे, उन्होंने इसको बनाया था और ये नोट आपके पास पहले से अवेलेबल है। सर कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे बनता है? वेरी फनी क्वेश्चन ऋषिराज। बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो कोई भी लैंग्वेज हाथ से बनता है। मजाक का है। किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए, जैसे अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तब आपको बताता हूँ, प्लेटफॉर्म पहले समझ लो जो मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आपको हमने बताया था दैट इज कॉल्ड टोकेन्स ऑफ पाइथन। अब ये टोकेन्स क्या है पाइथन में? पाइथन में टोकेन्स कहते हैं एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट के जिसके बिना कोई सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम पे काम किया ही नहीं जा सकता है। चाहे आप कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हो या ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में टोकेन्स होते हैं। वो टोकेन्स हमारा बेसिक एलिमेंट होता है। अब उसका नाम जैसे ही लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। दैट एक्चुअली कॉल लिटरल्स, आइडेंटिफायर, variable, constant, keyword, then after operator, separator, statements. So these are called token of any computer or any language. आप किसी भी लैंग्वेज में काम करो, आपको ये सारे टोकन्स पढ़ने पड़ते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल आप मान लो, आप इंग्लिश को ही ले लो, वहां भी लिटरल्स पढ़ने हैं, आइडेंटिफायर पढ़ने हैं लेकिन उसकी मीनिंग अलग है, वहां भी कीवर्ड पढ़ने हैं लेकिन उसकी मीनिंग अलग है। मैंने इसके लिए स्पेशली आपको अलग से बताया था कि व्हाट एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच वी फाउंड प्रोडक्ट ऑफ द लैंग्वेज। जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश का हमारा बेस क्या है? इंग्लिश का बेस हमारा होता है, यानी किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है एक्चुअली अल्फाबेट्स, डिजिट एंड सिंबल। उसी के थ्रू ही हम लोग वर्ड बनाते हैं, वर्ड को कंबाइन करके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को कंबाइन करके पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ को कंबाइन करके हम लोग स्टोरी, आर्टिकल्स या बुक वगैरह जनरेट करते हैं, डिजाइन करते हैं। Same process whenever you are working with any computer language, you always have to go with the same process. As you know, computers work with English language. Generally we are working with English language today. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? तीन चीज अवेलेबल है यहाँ भी। इंग्लिश में जो चीजें अवेलेबल है वो चीज यहाँ भी अवेलेबल है। तो सेम चीजें क्या है? यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज में भी तीन चीजें आपको आइडेंटिफाई होती है, दैट इज वेरी कॉल्ड डिजिट, नंबर, डिजिट को नंबर कहते हैं, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड सिंबल। इसको जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग एक पार्टिकुलर टर्म को अचीव करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कीवर्ड, या फिर इसको कहते हैं हम लोग सिंपली कोड। ठीक है, अब उस कोड के थ्रू हम लोग जो टर्म डिजाइन करते हैं दैट एक्चुअली कॉल्ड कीवर्ड। कीवर्ड इज व्हाट? कीवर्ड इज जस्ट लाइक अ इंग्लिश डायरेक्टरी। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में आप वर्ड मीनिंग याद करते हो, दैट इज यूनिक, यू कांट चेंज इट। जैसे एप्पल मीन सेब होता है, हिंदी में सेब बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एप्पल बोलते हैं। इसकी मीनिंग नहीं बदल सकती बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हम इसका नाम नहीं बदल सकते हैं, एप्पल मीन अमरूद नहीं हो सकता है। जस्ट लाइक दैट किसी भी लैंग्वेज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाइथन लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड दैट नेवर चेंज and we can't use the same for different purposes. अब उसके नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, कांस्टेंट नहीं बना सकते हो। ऑपरेटर्स के लिए आपकी बात करते हैं तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर बेसिकली द सेट ऑफ सिंबल्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया अल्फाबेट्स, डिजिट, सिंबल। whenever we combined it we found the term that is called code, and whenever we found this code inside a meaningful way
then we called it as a keyword or related things. Whenever we combine more than one keywords or related things, we find the term that is called instruction. And instruction which is computer which can be inputted inside the computer to perform some set of job. And whenever we created more than one instruction, we found the term that actually called program. And whenever we combine more than one program, we found the term that is called software. And after that, whenever we combine more than one software, we will have the term that actually called packages. Just MS Office package. I receive a message from your side. किसका मैसेज है ये? विजय, why sometime keyboard shortcut not work? कोई समझाओ जी इसको. कुछ क्वेश्चन विजय आपको क्लास के बाद पूछनी चाहिए. ये अभी डिस्कशन का पार्ट है, आप खुद सोच के देखो. नो डाउट आपके क्यूरियोसिटी को समझ रहा हूं मैं. नो डाउट मैं भी आपके क्लास में कभी बैठा होऊंगा, जहां आप बैठ के अभी पढ़ रहे हो, मैं भी कहीं पढ़ाऊंगा. लेकिन आप इस चीज को रियलाइज करो हमेशा कि जिस टॉपिक पे बात हो पहले उसकी बात करो ना. आप अभी यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, आप कीबोर्ड की बात कर रहे हो, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है आपको. उस टाइम में आप ये सब चीजें पूछ लो. अभी अपना फोकस आप यहाँ रखो जो आपने कर रखा है पहले से. इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर आपको ये सब चीजें क्लियर नहीं होगी, मैं लिख के देता हूँ कि जिंदगी में कभी भी आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे. और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, बहुत ही छोटा चीज है. ठीक है, चलो ओके, कोई नहीं. मेरे बात का बुरा लगे तो बुरा मत मानना. Next I am going to talk about the term that is what actually the literal here. Literal क्या होता है? Normally whenever we go for any programming or language, we firstly identify the term that is called literal. आप इसको यूं समझो कि whenever we are working with computer, we are actually doing the same thing again and again, that actually called IPO cycle. ठीक है. अभी IPO साइकिल क्या है, यू ऑल नो वेरी वेल. आपने इसको क्लास 3 से पढ़ा होगा कि IPO stands for input, process, output. It is a cycle in which computer operate any kind of instructions. Here input identify feeding of some data inside the computer, and whenever data comes, there is a device or the system that is called brain of the computer 2, that is called CPU, that is responsible to process the given inputted data. That means here lots of manipulations are going to be done, and after that you will have a result that is called output. So this cycle is going to be repeat again and again according to the given inputs that is given by the users. So whenever we feed any kind of data, here is a term that is called literals. मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि आप मान लो एज फॉर एग्जांपल किसी पार्टी में जा रहे हो और वहां पे आपके लिए चॉकलेट रखे हुए हैं. ठीक है, तो अब चॉकलेट के अलग अलग वेराइटी है. ठीक है, अब नाम मुझे याद नहीं है, पाइनएप्पल है, जो भी है, फ्रूट्स है, मिक्स फ्रूट है, चॉकलेट है, बहुत सारे फ्लेवर है. एज्यूम करो कि ये सारे के सारे चॉकलेट एक साथ मिक्स करके आपको दे दिए जाए, खाओगे आप? यू विल नेवर डू द सेम, डू इट. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें हैं जो पहले से कैटेगराइज है, वी कांट मिक्स इट. तो वो कैटेगरी क्या है, तो वो कैटेगरी हमारा लिटरल से आइडेंटिफाई हो जाता है. जैसे कि इंटीजर, जैसे कि फ्लोटिंग है, जैसे कि हमारा कैरेक्टर, जैसे कि स्ट्रिंग. ये 3 तरह के लिटरल्स होते हैं जो हर एक लैंग्वेजेस में होते हैं. कैरेक्टर, नंबर जिसको कि आप इंटीजर कहते हो, एंड देन आफ्टर स्ट्रिंग. नंबर के लिए हमारे पास इंटीजर है. कैरेक्टर्स यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ABCD, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टर लिटरल्स हैं. और मान लो वर्ड, मेरा नाम ज्ञानेंद्र वर्मा इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को ऑपरेट करने के लिए स्ट्रिंग लिटरल्स है. तो ये 3 बेसिक पैकेट हैं जिसको कि ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. इसको सिर्फ काम होता है वहां तक उसको पुट करा के रख देना. ठीक है, ताकि वहां से जिसको भी यूज करना हो उसको वो यूज कर ले. नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर. मैं नेक्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ. So next term is identifier. Here is the identifier. What actually the identifier means here? Basically, identifier means a kind of token inside the computer programming language that actually identify the input. तो ये input कहाँ से ले रहा है? Basically
whenever we feed any data inside the computer, all the data is recognized as a string. ये always string होता है. Last day मैंने इसको दिखाया भी था आपको, जो प्रॉब्लम आ रही थी नंबर्स के रिगार्डिंग. तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि whenever you feed any data inside the computer with the help of the computer programming language, here is a term that is called identifier, that it basically identify which type of data is going to be inputted. And whenever we input any data, that means we are going to save something or store or hold something inside the computer memory. And as we all know that we have two kind of storage inside the computer. Computer में दो storage है. First one that actually called primary storage, and second one that is called secondary storage. So whenever your program is going to be executed, then secondary memory is not going to be used by the computer. It is for the user. ये हम लोगों के लिए है. But there is a primary memory that is especially memory, or that is designed for the application or softwares only. That means जितने भी software programs आपके कंप्यूटर में execute कर रहे हैं, that actually available inside this particular part of the memory, that is called primary memory. And as you all know that primary memory are two category. First one RAM and second one is ROM, that is volatile and non-volatile. अब chat box में आप लिखोगे कि which one is called volatile and which one is called non-volatile. Write your answer in the chat box. Do it fast. तब तक मैं आपको एक प्रोसेस दिखला देता हूँ कि where actually your application is going to be executed. यहाँ देख लो, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क मैनेजर. दिखाने को बहुत चीजें हैं लेकिन आपके काम के नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा सकता. ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस है जो अभी काम कर रहे हैं मेरे इस सीपीयू के अंदर, इस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर. यहाँ देखो तीन तरह के आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली चार तरह के दिख रहे हैं. फर्स्ट वन इज सीपीयू, दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी. मेन मेमोरी का 44% यूज हो रहा है. मेमोरी दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट रैम, दैट इज द फिजिकल रिजर्व मेमोरी बाय द सिस्टम. तो 68% यूज हो रहा है. डिस्क यानी कि हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं. यहाँ देखो ये फाइल ओपन है, लिस्ट ऑफ पाइथन करके लिखा हुआ है. यहाँ एक फाइल, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है. तो ये सारे जो फाइल्स नीचे खुले हुए हैं उसकी लोकेशन उसके एक्सेसिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है. देखो सबलाइन कितना यूज कर रहा है, अभी 0 यूज कर रहा है क्योंकि वो आइडल है. जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो एक्सेस हो जाएगा. मेमोरी में ये कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 38.9 MB जो इस फाइल हमारे पास अवेलेबल है राइट नाउ. नेक्स्ट वन टास्क मैनेजर अपने आप में एक मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो ये मेमोरी यहाँ दिख रहा है. तो आपको हमेशा याद रखना है कि मेमोरी दो तरीके का है. एक यूजर के लिए जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी कोई मेमोरी इस्तेमाल नहीं हो रहा है करंट में. सारे के सारे मेमोरी कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, रैम के अंदर. दैट्स व्हाई इट गिव्स 69%. है जो भी है. अब इसको बंद करता हूँ मैं. I think I received number of response from your side. RAM is called volatile. Nidhi, you are right. Najuk, you are also right. Who is next? Aman, you are also right. And Najuk, again, you are also right. Chalo, okay. RAM is actually called non-volatile memory. And sorry, this one. RAM is actually called non-volatile memory, volatile memory, and ROM is called volatile. RAM is called non-volatile memory and ROM is called volatile memory. ठीक है? ROM is non-volatile because it store your set of data for the lifelong. ये always आपके डिवाइस के इंफॉर्मेशंस को परमानेंट स्टोर करता है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो, whenever you put any device to your computer, it will detect it. डायरेक्टली डिटेक्ट करता है कि आपने क्या अटैच किया है. आपने पेन ड्राइव लगाया है, आपने प्रिंटर लगाया है, आपने माउस लगाया है, आपके स्क्रीन पे फ्लक्चुएट हो जाता है. दैट मीन्स your RAM have already some set of information about your device. That's why it is called non-volatile. And RAM is a volatile memory because it store your data for the very limited purpose, purposes. Actually, whenever you are executing any application, program, or any file, it actually executed inside the RAM. So it is going to be handled. Now come to the point with the computer programming term. There is a term that is called
वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल इज एक्चुअली रैम को बताने का कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ से ही है कि वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल इज एक्चुअली वी कैन से दैट a changeable element of the program that always change. ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल के पास दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक. तो वेरिएबल इज द डायनेमिक storage for your program data or inputted data, and there is another kind that is called constant, that is always fixed, or we can also say static. So these are two variety of the memory allocation is possible inside the computer program. Whenever you give any input to the program, it is going to be handled or stored inside a variable. So there is a term variable here that actually hold your data for the specific purpose, and it have its own life cycle. That means whenever you use any kind of variable inside a set of range like loop, function and class, then its life is going to be decided. That means वो कहाँ काम करेगा? उस particular function के अंदर ही काम करेगा, function के बाहर काम नहीं करेगा. So we identify variable can be categorized into two category. First one is that is called local variable, and the second one that is called global variable. Concept clear हो गया होगा आपका? Next, constant भी यहाँ clear हो गया होगी. Constant are the fixed value inside the programming language that never change. आप उसको static भी कह सकते हो, static variable कह सकते हो, जो constant से decide होता है. ठीक है, तो बेसिकली कांस्टेंट्स क्या है हमारे पास? एक तरीके का एक वैल्यू है जो हमारा फिक्स होता है. जैसे एज फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10, we can manipulate it by the next statement a is equal to 20. Here a is equal to 10 is going to be replaced by a is equal to 20. तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? रिप्लेस हो जा रहा है. बट whenever we set the constant value like pi value is always fixed, 22 by 7, that actually the unit, or we can say that calculation step. So we identify pi as a 3.141. बचपन से पढ़ा होगा आपने, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता. दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट और इट इज स्टैटिक ऑलवेज. ठीक है, आगे आते हैं हम लोग. मेरे पास दो रिप्लाई आए हैं आपकी तरफ से, जस्ट वेट. प्रियांशु गर्ग, the memory which remember the data and do not delete it is called known in, क्या लिखे हो? नॉन वोलेटाइल लिखना था ना, एन ओ लिखे हो स्पेस करके. वोलेटाइल मेमोरी विच रिमाइंडर. वेरी गुड, यू आर राइट. तो एक काम करो, मुझे आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से कि व्हाट एक्चुअली कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी. मैं लिख देता हूँ, आप गूगल से या जैसे भी रिसर्च कर सकते हो, करो. वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी के लिए आपने पढ़ा है दो तरह की मेमोरी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड दूसरा पढ़ा है आपने सेकेंडरी. तो आपके लिए क्वेरी है, क्वेश्चन है, व्हाट एक्चुअली द वर्चुअल मेमोरी इज. तो आप इसके लिए बुक्स पढ़ो, गूगल करो, या व्हाटएवर जो भी आपका रिक्वायर्ड स्टेप है